गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज जा रही है? Yes, sir. We will talk Good about morning, sir. probability distribution. Actually, probability distribution is analogous to relative frequency distribution. Actually, relative frequency distribution is used in sampling distribution, whereas this probability distribution is distribution of population. When we use probability distribution, that means we are talking about population, not sampling distribution. Actually, probability distribution is of two types. One is discrete and second is continuous. What is discrete? Discrete means which is not continuous, like 1, 2, 3, 4. It varies from 1, 2, 3, 4. It is not continuous. But in continuous distribution, even fraction can be value of the continuous distribution. Okay. Example of discrete distribution is Poisson distribution and binomial distribution. And example of continuous distribution is normal distribution. Probability distribution is said to be discrete when it is based on discrete random variable, and it is said to be continuous when it is based on continuous random variable. Actually, two characteristics of probability distribution. One is probability are non-negative. What does it mean? It means probability cannot be negative. Actually, Px is always greater than equal to 0. ठीक है, ये 0 से कम नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी। कोई चीज होने का संभावना प्रोबेबिलिटी अधिक से अधिक नहीं होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, निगेटिव तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रोबेबिलिटी आर नॉन निगेटिव। दैट मीन्स Px इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है टुगेदर दे एड टू यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्रोबेबिलिटी है एक चीज का, एक जब हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं, उसका जितने भी प्रोबेबिलिटी है उसको सबको जोड़ोगे तो उसका जो योगफल होगा वो 1 होगा। जैसे व्हेन यू टॉस एक क्वाइन टॉस कर रहे हो, उसमें 2 इवेंट है, ठीक है, एक हेड है और एक टेल है, 2 आउटकम है। अगर हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5, टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5, 1/2 है ना, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, सो सम ऑफ आउटकम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इज ऑलवेज 1। जैसे आप एक डाइस लो, डाइस समझते हो ना, लूडो का गोटी, ठीक है। अब उसमें 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6, 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6, 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो सबको 1/6 6 टाइम जोड़ोगे तो कितना आएगा 1। तो जितने भी प्रोबेबिलिटी है वो सबका योगफल क्या होता है 1 होता है। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब हम बात करेंगे पहला, एक्चुअली हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, 2-4 हम बात करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे, ठीक है। जब उसके बाद हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे उसमें हम फिर जो टी डिस्ट्रीब्यूशन, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसमें सबसे पहला हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं।
Actually, binomial distribution is a discrete distribution. Discrete, why is it discrete distribution? Because its value gives a number, a full number like 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so it is based on discrete random variable. That's why it is discrete distribution. So example of discrete distribution is binomial distribution and Poisson distribution. It arises when single trial of some process or experiment can result in only one or two mutually exclusive outcomes. What is mutually exclusive outcome? Anyone? What is mutually exclusive outcomes? Sir, when two outcome doesn't occur simultaneously is called mutually very good. exclusive. Actually, one event suppress the occurrence of other events. Only two events cannot be occur simultaneously, like either yes or no. इसमें दोनों में से एक ही हो सकता है. मान लो कोई चीज का जो रिप्लाई है वो या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है, विथ स्केल और विदाउट स्केल. अगर फिश है, फिश या तो विथ स्केल हो सकता है या विदाउट. टू में से एक ही चीज हो सकता है. इस टाइप का जो भी है, दो जहां ऑप्शन हो उसमें से एक ही आउटकम हो, इस टाइप का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. नाम से ही पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जैसे यस और नो, यस और नो में चूज करना है. हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में चूज करना है. मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में चूज. टू आउटकम है, उसके उसमें एक ही होगा. ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगा. इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. Actually, suppose the individual examine process poses. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं जा रही है. कट कट क्या है? अभी आ रही है. अच्छा, वीडियो ऑफ. Yes, sir. यस सर, यस सर. चलो वीडियो ऑफ कर देता हूँ. Actually, suppose one pond is there. एक पॉन्ड है जिसमें मछली है. ठीक है, उसमें अब हमको प्रोबेबिलिटी, मान लो कि जो हम एक मछली निकालने वाले हैं उसका, उसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो विथ स्केल होगा. इसका प्रोबेबिलिटी p है. ठीक है, हम ऐसा मान लिया कि कोई मछली हम निकाल रहे हैं, माना कि उसका जो स्केल हो, वो मछली जो निकलेगा उसमें स्केल हो, उसका प्रोबेबिलिटी p है. तो बिना स्केल वाला का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ऐसा मछली जो जिसमें स्केल नहीं हो, हमने पहले ही बताया कि अकरेंस ऑफ 1 माइनस पी होगा, क्योंकि अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्लस नॉट अकरेंस ऑफ वन इवेंट इक्वल टू 1 होता है ना. तो 1 माइनस पी, इसको हम मान ले क्यू है. ठीक है, अकरेंस ऑफ इवेंट हो गया पी, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट हो गया क्यू. अगर ऐसा है तब जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम डिफाइन करते हैं बर्नौली थ्योरम का, px इक्वल टू cnx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x. इसको याद कर लेना. ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ क्वेश्चंस आएंगे. cx, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है? हाँ, Yes, sir. 12th में पढ़े थे. हाँ, उसी से ये बनेगा cnx. ठीक है, उसके बाद बाकी px q nx. तो इसमें हमको अगर p पता रहेगा तो q अपने आप निकल जाएगा, और n पता रहेगा तो ये पूरा निकल जाएगा. इसलिए p और n को हम बोलते हैं पैरामीटर ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि इफ p and n are known, then we can calculate its probability mass function. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको याद रखना है. ठीक है, कोई भारी नहीं है. अब है ये जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है. ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं. इवन JRF के एग्जाम में भी बहुत बार पूछते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज से
क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे बाइनोमियल से ना रहे, पॉइजन से ना रहे या नॉर्मल से, तीनों में से किसी ना किसी से तो रहता ही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज है पहला, जो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है एनपी। ये नंबरिंग जो है थोड़ा गलत हो गया है, जो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन m इक्वल टू एनपी। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट। तो एनपी जो है इसका मीन है। जब हमको मीन निकालना होगा तो अगर n दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो हम उसका मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में अगर तुम्हें जो है एनपी उसमें दिया हुआ है तो मीन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा है वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा स्क्वायर बराबर एन पी क्यू। ठीक है, ये मीन हो गया, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी है, और वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपीक्यू है। अब तुम्हें ये बताना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ज्यादा है कि वेरिएंस, कौन कौन ज्यादा होता है, हैं? बताओ। वेरिएंस वेरिएंस, नहीं वेरिएंस मीन ज्यादा होगा। मीन ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। क्यों क्यों ज्यादा ज्यादा होगा, होगा। ज्यादा होगा क्यों होगा उसमें ज्यादा? रूट चार्ज आएगा ना। क्योंकि स्क्वायर है सर। क्योंकि स्क्वायर क्यू का रूट है। वैल्यू हमेशा नहीं। फ्रैक्शन आएगा। अगर हाँ, मान लो, हाँ। हाँ, एनपीक्यू है ना, इसमें क्यू एक एक्स्ट्रा है ना वेरिएंस में, क्यू का वैल्यू हमेशा जो है एक से कम ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम एक तक हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो है ना, समझ में आया? यस हियर वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन इज द कंडीशन ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस नहीं, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। ठीक है, मीन वेरिएंस जो है Yes, sir. कम होगा। ठीक है, तो मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस इज कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहीं ना हो तो लिख लो। ठीक है, ये पूछता है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, और जनरली लोग जो है m बराबर np है और वेरिएंस बराबर npq है। ठीक है, तो जनरली लोग बोल देते हैं वेरिएंस ज्यादा है, लेकिन q का वैल्यू हमेशा एक से कम होगा, या ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक होगा, लेकिन वो बहुत कम चांस है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट कुछ तो होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ जो जितना इवेंट होगा उससे तो एक से घट जाएगा ना उतना। तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है इफ p इक्वल टू q इक्वल टू हाफ देन इट इज सिमेट्रिकल। अगर p का वैल्यू और q का वैल्यू बराबर हो और वो आधा हो, 0.5 हो, तो उसका जो कर्व होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो सिमेट्रिकल कर्व होगा। और अगर p इज लेस देन 0.5, अगर p 0.5 से कम होगा तो q क्या होगा, 0.5 से ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने बताया p प्लस क्यू बराबर 1 होता है। अगर p 0.5 से कम है तो q क्या होगा, 0.5 से ज्यादा होगा। और इस केस में जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। हमने बताया था स्क्यूनेस, कौन बताएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री से राइट साइड में ट्रेल ज्यादा होगा, राइट ट्रेल होगा। राइट साइड में जो है टेल लॉन्गर डिपार्चर होगा। फ्रॉम ठीक है, सिमेट्री उसको बोलते हैं हम पॉजिटिवली स्क्यूड। तो अगर p का वैल्यू 0.5 से कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। इफ p इज ग्रेटर देन 0.5 देन इट इज निगेटिवली स्क्यूड। कौन सा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम जो है n का नंबर यानी नंबर ऑफ ट्रायल जब हम इंक्रीज करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन धीरे 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 जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह शिफ्ट करता है। ठीक है, ये जो है प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, प्रॉपर्टीज बहुत बार पूछता है। ठीक है, दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्चुअली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने बताया पहले ही, ये भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सपोज if probability of occurrence of an event p is very small। ठीक है, जो कोई चीज का होने का जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो
बहुत कम है और नंबर ऑफ ट्रायल जो है बहुत ज्यादा है, सो दैट नंबर ऑफ ट्रायल n है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या है, p है, सो P. दैट np is constant. That means p approaches to p tends to 0, n tends to infinity and np equal to constant, then it is condition of Poisson distribution. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत कम हो, ठीक है, सो दैट जो एनपी इक्वल टू दोनों का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हम जो डील करते हैं वो रेयर इवेंट में, जैसे आप एक साल में, जैसे हम बोलेंगे कि एक साल में सुनामी कितने बार आया, या फिर एक प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें एक मशीन जो है कितने बार टूटा, तो रेयर इवेंट जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डील करता है रेयर इवेंट जो कि रेयरली हो, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है इनफाइनाइट टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत लार्ज है, और जो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और गेटिंग सक्सेस इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब निग्लेजिबल, बहुत कम हो, प्रोबेबिलिटी हो किसी चीज का होने का बहुत कम हो और नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो, सो दैट एनपी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कंडीशन जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, और इसका जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है लेमडा टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस लेमडा डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। ये भी फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद रखना है। लेमडा क्या है यहाँ पे, लेमडा जो है मीन है, मीन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसका जो कंडीशन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ जो है मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू एनपी, समझ में आया। पहले वाला जो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े उसमें क्या था कंडीशन, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, यहाँ पे कंडीशन क्या है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू एनपी, ठीक है, एनपी अगर हम Variance is equal to NP. हाँ, अगर मीन जो है वेरिएंस के बराबर है तो आंख मूंद के तुम कह दो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तुम्हें याद रखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस जो है वो बराबर होता है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। पॉजिटिवली स्क्यूड तो जानते ही हो, ठीक है। ये देखो हमने जिन्होंने वो क्लास नहीं किया स्क्यूनेस वाला, उसके लिए हमने ये डाला था, जब जो है ये जो देखो लॉन्गर टेल जो है वो राइट साइड में हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर लॉन्गर टेल जो है लेफ्ट साइड में हो उसको बोलते हैं निगेटिवली स्क्यूड। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या कौन सा स्क्यूड होता है कि सिमेट्रिकल होता है, स्क्यूनेस होता है उसमें वो भी पॉजिटिव स्क्यूड होता है। और पॉजिटिव स्क्यूड बोलने का मतलब क्या है, मोड इज ग्रेटर देन मीन, और निगेटिव स्क्यूड बोलने का मतलब है मीन इज ग्रेटर देन मोड। यहाँ पे क्या है, लेमडा क्या है, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वेरिएंस के बराबर होता है, ठीक है। और जो है चूंकि यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला जो है ये x तो 1 2 0 1 2 3 वेरी करता है, यहाँ पे सिर्फ लेमडा का वैल्यू पता करने से हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल सकते हैं। इसलिए लेमडा को कहते हैं क्या, पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पैरामीटर ऑफ जो है, एक चीज और है, कहीं कहीं जो है फॉर्मूला में देखोगे m लिखा है, देखो फॉर्मूला में m लिखे या लेमडा लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी लिखा रहे जैसे लेमडा लिखे हो तुम्हें लिखना है वेयर लेमडा इज मीन, ठीक है, या m लिखा है तो लिखो m इज मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी चीज लिखो, अब लेमडा लिखो वो भी सही है, m लिखा है जहां पे वो भी सही है, लेकिन तुम्हें वो मेंशन करना है
कि वो क्या डिनोट करता है वो फार्मूला में, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे फार्मूला में लेमडा लिखा है, तो बहुत जगह जो है इवन RS बिरादर जो है बुक, उसमें भी M लिखा है। तो बहुत जगह लेमडा भी लिखा रहता है, बहुत जगह M भी लिखा रहता है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो एग्जाम्पल है, क्या क्या है? द नंबर ऑफ मशीन ब्रेकडाउन डेली इन फिश प्रोसेसिंग प्लांट। मैंने पहले ही बोला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज डिस्क्राइब द रेयर इवेंट। अब जरूरी नहीं है कि एक दिन में कोई मशीन टूटेगा ही, लेकिन रेयर इवेंट है, हमने पहले ही बताया, जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है इन्फिनाइट टेंड्स टू इन्फिनाइट, और सक्सेस जो है या अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज टेंड्स टू 0, ठीक है। बहुत रेयर इवेंट की बात हम करते हैं तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मोड। तो ये है पहला एग्जांपल। दूसरा है नंबर ऑफ सुनामी अकर्स एट उड़ीसा कोस्ट एवरी ईयर। एक साल में, हर साल में जो है उड़ीसा में सुनामी कितने बार आता है, ये भी रेयर इवेंट है, हो सकता है कभी आए कभी ना आए, ठीक है। तो और है अगला एग्जांपल, नंबर ऑफ शिप अराइव इन ए हार्बर पर आवर। एक आवर में कितना शिप हार्बर में आता है, किसी आवर आएगा किसी आवर नहीं आएगा। तो ये जो है एग्जाम्पल है किसका, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी जब हम एन का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा होता है, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पहले जो दो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टैटिस्टिक्स में और जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने में, लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर याद नहीं भी हो, अगर ये इस टाइप का कहीं पे भी वैल्यू आए तो तुम उसको टिक लगा ही सकते हो, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ना, मल्टीपल चॉइस में, तो लेकिन ये तुम्हें याद करने की कोशिश करो। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन का ये है, ये भी पूछता है, ठीक है। यहाँ पे जो है म्यू क्या है, मीन है, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और पाई का वैल्यू 3.14 पता ही है, और ई जो है बेस है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंप्लीटली आइडेंटिफाई होता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से। जो यहाँ पे हमने दिखाया था, मीन क्या है, एक्स है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा है। मीन जो है म्यू है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। ये म्यू और सिग्मा अगर तुम जान लिए तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। इसलिए जो म्यू दैट मीन्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये पैरामीटर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, और थ्योरेटिकली जो है ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक वेरी करता है। थ्योरेटिकली हमने कहा क्यों, क्योंकि जब हम सिमेट्रिकल कर्व पढ़ा रहे थे, ठीक है, उस टाइम हमने बताया था कि जो है सिमेट्रिकल जो कर्व है उस वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। वो अप्रोच एक्स एक्सिस के करीब रहता है, लेकिन वो एक्स एक्सिस पे कभी टच नहीं करता है। इसलिए चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है सिमेट्रिक होता है, और इसलिए ये जो थ्योरेटिकली वेरी करता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और लेकिन प्रैक्टिकली जो है मीन ± स्टैंडर्ड डेविएशन तक वेरी करता है। एक्चुअली तुमको ये ग्राफ से पता चलेगा। देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये देखो सिमेट्रिक कर्व है, ये देखो ये एक्स एक्सिस जो है ये कभी टच नहीं करेगा, इनफिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा दोनों साइड। लेकिन यहाँ देखो मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक कवर हो जाता है
99.7% ऑफ डाटा, यानी 99.7% ऑफ डाटा तुमको मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक कवर हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकली जो है हम कहते हैं कि मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक ही वेरी करता है जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन थ्योरेटिकली इट्स वेरीज फ्रॉम -∞ टू +∞। ठीक है, उसी प्रकार मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये डिस्क्राइब करता है 95.5% ऑफ टोटल डाटा, और मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो डिस्क्राइब करता है टोटल पॉपुलेशन का डाटा 68.3% ऑफ द डाटा। और ये जो है नॉर्मल कर्व है। अब इसमें हमने बताया था नॉर्मल कर्व में जो है 2 पैरामीटर है, एक क्या है कोई बताओ, एनीवन? लेफ्ट टू एक मीन है और दूसरा क्या है स्टैंडर्ड है। डेविएशन। ठीक है, अब देखो मीन जो है वो इसका पीक को डिसाइड करता है। देखो यहाँ मीन है ना, ये ऊपर कितना जाएगा वो जो डिसाइड करता है मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ब्रीथ को डिसाइड करता है। ठीक है, अगर मीन कम होगा इसका पिकनेस जो है वो थोड़ा कम होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम होगा तो इसका जो चौड़ाई है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर 2 चीज को डिनोट करता है ये कर्व में। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, जब प्रैक्टिकल अगर सब चीज ठीक रहा, अगर प्रैक्टिकल तुम लोग को कराएंगे तो अब हम बताएंगे कैसे इससे एरिया अंडर नॉर्मल कर्व हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसमें हम बताएंगे। एक्चुअली बहुत सारा चीज हम जो है ये ऑनलाइन क्लास में तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम खुद सेटिस्फाइड नहीं है ये ऑनलाइन टीचिंग से, लेकिन मजबूरी है क्योंकि इस टाइम में तो हम जो है ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम एक बार फिर से ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक बार फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये था तुम्हारा, ये है तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तुमने देख लिया, जो ये क्या है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये जो कर्व देखो ये जो है ये है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कर्व क्या है बेल शेप सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ से अगर तुम एक लाइन खींच लो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। ये सिमेट्रिकल भी है, बेल शेप्ड भी है, और क्या है कंटिन्यूअस है। तो ये जो 3 चीज है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर तुम्हें पूछा जाएगा बेल शेप्ड कर्व या सिमेट्रिकल कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन, तो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर एक और नाम क्या बोले थे सर? सिमेट्रिकल बेल शेप्ड और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये, वो इसका नाम नहीं है, ये बेल शेप्ड कर्व है, सिमेट्रिकल है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार का होता है, एक सिमेट्रिकल और नहीं ये कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रीट। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद इट इज एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक हमने एक बार बताया था, क्या है उसका मीनिंग, नेवर टचेस टू द एक्स एक्सिस, इट इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वो जो अप्रोचेस टू एक्स एक्सिस बट नेवर टचेज, हमने दिखाया था। यह देखो ये जो है दोनों एक्स एक्सिस को दोनों साइड कभी टच नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। ठीक है, दूसरा है द अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड जो है वो एक ही जगह कोइंसाइड करता है। यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड जो है सब एक ही जगह कोइंसाइड करता है, एक ही बिंदु पे। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मीन, मीडियन और मोड जो है कोइंसाइड कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में करता है, तो वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी सिमेट्रिकल कर्व है तो वहां पे मीन, मीडियन और मोड एक ही पॉइंट पे होगा, ये याद रखना। अगर स्क्यूनेस नहीं है, 0 है, तो वो सिमेट्रिकल कर्व है, और सिमेट्रिक कर्व का मीन, मीडियन और मोड एक ही जगह पे होता है, वो कोइंसाइड होता है। ठीक है, अगला है द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द कर्व डिस्क्राइब बाय मीन, मैंने पहले ही बताया, और स्पीड ऑफ द कर्व इज डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमने अभी पहले ही बताया।
ये अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 हुआ, इसका मतलब क्या है, कर्व साइमेट्रिक है, हमने बताया था ना। स्क्यूनेस 0 मतलब, Yes, sir. स्क्यूनेस का मतलब ही है डिपार्चर फ्रॉम साइमेट्री। तो इफ स्क्यूनेस इज 0 दैट मींस कर्व इज साइमेट्रिकल एंड कोफिशिएंट ऑफ Symmetrical distribution. कुर्टोसिस इज 3। हमने बताया था मेजो कुर्टोसिस का जो है वैल्यू होता है 3। तो नॉर्मल कर्व का जो है कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस जो है वो 3 होता है। कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस क्या है, डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ सिमेट्रिकल कर्व। सिमेट्रिकल कर्व का थिकनेस कितना ज्यादा थिकनेस है, अगर जो है नॉर्मल कर्व से ज्यादा थिकनेस है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ? Lepto. हाँ, और अगर कम है तो प्लेटिकोटिक। और बीच वाले को अगर नॉर्मल कर्व है उसको बोलते हैं मेजोकोटिक, जिसका वैल्यू 3 होता है, 3 होता है, ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस सिमेट्रिक कर्व का जो है वो उसका वैल्यू 3 होता है। अगर 3 से ज्यादा हो गया वो हो गया लेप्टोकोटिक, 3 से कम हुआ वो हो गया मेजोकोटिक, वो प्लेटिकोटिक, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो है मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने बताया था वो लगभग 68% एरिया जो है टोटल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। और मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन वो इंक्लूड करता है लगभग 95% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, जो हमने उसमें दिखाया ना कर्व में। तो हमको अगर जो मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लेंगे वो 95% टोटल फ्रीक्वेंसी एरिया को डिस्क्राइब करेगा। और मीन प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर लेंगे वो 99% टोटल एरिया को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये जो है हमारा, हाँ बोलो, वहाँ पे जो 68.27% का है उसमें कहाँ? म्यू प्लस माइनस लिखा है। कहाँ? 68.27 ना, म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है वो। म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन बताया, ब्रीथ है। म्यू मतलब है मीन, मीन है उसको प्लस माइनस, जैसे हम देखो हम इसको ये दिखाते हैं, ये वाला कर्व है, ये मीन है, मीन प्लस हो गया 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ, और मीन माइनस यही हो गया, मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 68.3% ऑफ डाटा ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार देखो मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ है प्लस और ये माइनस है, ये पूरा एरिया जो है लगभग जितने डाटा है उसका 95.5% एरिया को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। वही चीज मैंने वहां कहा, यहाँ पे 95.5। तो ये जो है एक्चुअली में ये जो 1.96 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये होल नंबर डिस्क्राइब कर रहा है 95%, ये 99%, इसलिए। और इसके आधार पे जो जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो उसको में जो चार्ट में जो वैल्यू दिया होगा ना, यही दिया होगा 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 95% होगा, 99% होगा। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व। हमने बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जो उसका स्प्लिट को डिनोट करता है, और मीन जो है उसका थिकनेस जो है वो सेंट्रल पोजीशन को डिनोट करता है, ठीक है। ये था तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने कहा कि नॉर्मल कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है कि जो है न्यूमेरियस कंटिन्यूअस फेनोमेना सच एज फिश लेंथ, वेट, बॉडी वेट, जो भी न्यूमेरिकल है, जैसे हम जो होते हैं ना, फिश लेंथ है, जैसे वेट है, बॉडी डेप्थ है, ये सब जो है हम ऐसा सपोज करके मानते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक चीज बता रहे हैं, जब भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम बताएंगे, जब भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं तो उसका एक कंडीशन है कि इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत वैल्यू है, जब हम पढ़ाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तब बताएंगे, ठीक है। अगला है मेनी ऑफ द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन अकरिंग इन प्रैक्टिस सच एज बाइनोमियल पॉइजन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पहले ही बताया, जब पढ़ा रहा था हमें बाइनोमियल और पॉइजन, उस टाइम भी बताया कि जब n जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बढ़ाते हैं, तो चाहे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अप्रोच हो जाता है और अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगला है इवन व्हेन द वेरिएबल इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उसे हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। कैसे? एक वर्ड है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम जैसे OLS यूज करने के लिए बताए थे, ठीक है, लिस्ट स्क्वायर मेथड। उसके लिए हमको स्टेट लाइन इक्वेशन यूज करना होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, स्टेट लाइन इक्वेशन यूज करने के लिए हम उसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के थ्रू हम जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाते हैं। जैसे स्क्वायर रूट का यूज कर दिए, लॉगरिथम का यूज कर दिए, तो वो डाटा ऐसा बनाए ताकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो वो हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए ये कंडीशन OLS क्या है? वो बताएंगे, अभी तुम लोग को पढ़ाई नहीं है, ठीक है। लिस्ट स्क्वायर मेथड जैसा ये रिग्रेशन वगैरह पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। हमने बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत जरूरी है पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। तो आगे का जो भी स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, अगर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हमने बताया था जब हम सैंपलिंग का स्टडी करके उसके आधार पे हम पूरा पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो ऐसा कब होता है, जब हम सैंपल का स्टडी करते हैं, सैंपल का जो है सैंपल के बारे में जानते हैं, जैसे उसमें टेस्ट वगैरह यूज करते हैं। तो पहले ही बताया उसके लिए कंडीशन है वो जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना जरूरी है, ठीक है। ये सब इसका इंपॉर्टेंस है, किसका? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। मेनी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स सच एज सैंपल मीन टेंड्स टू नॉर्मल फॉर लार्ज and hence they can be studied with help of normal distribution। हमने पहले ही बताया कि जो भी सैंपलिंग